Good afternoon. Today I am going to explain the meaning of commerce and function of commerce. First of all, we will know the meaning of commerce. कॉमर्स क्या है? कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहा जाता है. कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहा जाता है. What is commerce? Commerce include all those activities which helps in breaking the barriers between producer and consumer. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, हिंडरेंसेज होते हैं या बैरियर्स होते हैं जिसको कॉमर्स दूर करने का काम करता है. In other words, we can say commerce include all those activities which directly or indirectly helps in distribution of goods and services to final consumers. There will be no use of producing goods unless or until they reach or they consume they reach to the ultimate consumer. Goods are produced at one place, but consumers are scattered at different places of the country. Consumers don't know what types of goods are being produced by the consumer because there is no direct relation between producer and consumer. Goods are produced in large quantities but are demanded by consumer in small quantities. In this way, we say there are many problems between producer and consumers like hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage, hindrance of risk. Commerce removes all these problem और hindrance. हम जानते हैं कि गुड्स किसी एक स्थान पर प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले उपभोग करने वाले उपभोक्ता देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं. गुड्स जो है बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन उसकी डिमांड उपभोक्ता के द्वारा छोटे पैमाने पर या कम मात्रा में की जाती है. इसके अलावा कंज्यूमर को किसी नई गुड्स के बारे में पता नहीं होता है या प्रोड्यूसर जो कोई न्यू गुड्स तैयार करता है उसके बारे में भी उसे जानकारी नहीं होती है क्योंकि दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. इस तरह हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम या कठिनाइयाँ होती है जिसको कॉमर्स दूर करने का काम करता है. The commerce segment of business activities is very important. It is told commerce is backbone of industries. The goods produced by the industry reach the ultimate consumer due to commerce. कॉमर्स को इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है. जो गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है या बनाया जाता है वो कंज्यूमर तक कॉमर्स के कारण ही पहुंच पाता है. कॉमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं या रूल्स हैं बिजनेस में, उनको हम एक एक करके देखेंगे. द फर्स्ट फंक्शन और रोल ऑफ कॉमर्स इज commerce helps in removing hindrance of person. Commerce helps in removing hindrance of person. A large variety of goods are produced by a group of person called
producer or manufacturer, and the other group of person who consume the goods is known as consumer. There is no direct contact between producer and consumer. The trade segment of commerce create a link between producer and consumer. Trade helps in exchange of goods and services from the producer to consumer. एक लार्ज गुड्स जो है लार्ज वेराइटी में एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं, और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा गुड्स को कंज्यूम किया जाता है जिसको कंज्यूमर बोलते हैं। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। कॉमर्स का एक सेगमेंट है ट्रेड। ट्रेड जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करता है। ट्रेड गुड्स को एक्सचेंज करने में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हेल्प करता है। इस तरह हम देखते हैं कि ट्रेड जो है पर्सन रूपी जो हिंड्रेंस है उसको दूर करता है। सेकेंड है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लीज। कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लीज। Goods are produced at one place, whereas consumers are scattered at different corners of the countries. There is a place gap between producer and consumer. The transport segment of commerce remove these barriers, this hindrance. Through transport, goods are transferred from place of production to the market, and consumer purchase the goods by reaching the market. गुड्स किसी एक स्थान पर प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उसको उपभोग या कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स कंट्री के डिफरेंट कॉर्नर में होते हैं। उनके बीच में प्लेस गैप होता है या डिस्टेंस होती है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जो प्लेस गैप है उसको दूर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से मार्केट तक ट्रांसफ़र किया जाता है, पहुंचाया जाता है, और फिर कंज्यूमर मार्केट से अपने ज़रूरत के अनुसार गुड्स को परचेज कर लेता है। Therefore, transport is essential for buying and selling of goods. The third is here helps in removing hindrance of time. Helps in removing hindrance of time. Some goods are produced in a particular season, but they are used throughout the year. You can take the example of rice, pulses, and wheat. While some other goods are produced throughout the year, but they are consumed in particular season. So there is a time gap between production and consumption. During this period, goods need to be kept safe and fresh. Warehousing segment of commerce help in removing the problem of time. Goods are kept safely in the warehouse till they are consumed. कुछ गुड्स जो है किसी पार्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है या बनाया जाता है, लेकिन उनका कंजम्पशन
थ्रू आउट द ईयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप राइस का ले सकते हैं, व्हीट का ले सकते हैं, पल्सेज हैं। इनका प्रोडक्शन किसी पार्टिकुलर सीजन में होता है, लेकिन कंजम्पशन पूरे ईयर होता है, होल ईयर किया जाता है। इसके विपरीत कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन कंजम्पशन पार्टिकुलर सीजन में होता है। फॉर एग्जांपल एसी है, कूलर है, इनका प्रोडक्शन होल ईयर किया जाता है, लेकिन कंजम्पशन और यूज केवल समर सीजन में ही होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप होता है। इस दरमियान गुड्स को किसी खास स्थान पर सेफ और फ्रेश रखना होता है। कॉमर्स का एक सेगमेंट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस में गुड्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है टिल दे आर डिमांडेड एंड कंज्यूम्ड। The next function is commerce helps in removing the hindrance of exchange. The goods and services produced by the manufacturer are sold to the buyer in exchange of money. Money is a common means of exchange and it is circulated by the bank. So, banking branch of commerce helps in making the payment and receiving the payment. Nowadays, businessmen can easily transfer the money from one place to other in the form of checks, draft, etc. Bank also grant loan and credit facilities to the businessmen when they required fund or finance. Bank helps in international trade also by issue of letter of credit. प्रोड्यूसर के द्वारा गुड्स तैयार किया जाता है बायर को बेचने के लिए, मनी के बदले में बेचने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, और एक्सचेंज जो है मनी के रूप में होता है। मनी जो है बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। मनी के द्वारा बिजनेसमैन आसानी से पेमेंट रिसीव भी करता है और पेमेंट करता भी है। चेक ड्राफ्ट के द्वारा पैसा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, बैंक जो है फाइनेंसिंग का भी काम करता है। बिजनेसमैन को जब पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो बैंक उसे लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। इन दिस वे वी सी द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स remove the hindrance of exchange between producer and consumer. The next function is here helps in removing hindrance of risk. We know there are many risks in the business. The insurance branch of commerce help in removing the hindrance of risk by providing protection and compensation. इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बिजनेसमैन के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत बिजनेसमैन को अगर किसी तरह का नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कॉम्पेंसेट कर दिया जाता है। द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क दैट्स आर कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स in transit, storage by fire, flood, rain. बिजनेस में कई तरह का लॉस होता है। कभी गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो जाती है, कभी वेयर हाउस में आग लग जाती है जिसके कारण बिजनेसमैन का नुकसान होता है, कभी फ्लड के चलते, कभी रेन के चलते भी बिजनेसमैन को लॉस होता है। बिजनेसमैन इन सारी प्रॉब्लम को
फेस करता है, लेकिन इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स के कारण बिजनेसमैन का जो नुकसान है, लॉस है, उसको कवर कर दिया जाता है, या लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक सर्टेन अमाउंट के बदले, जिसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं, के बदले में कंपेंसेट कर दिया जाता है, मेकअप कर दिया जाता है। द लास्ट हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है। Generally, the consumer and buyer are not aware about the new products. Whenever the manufacturer produce a new goods, new product, about that consumer are quite unaware. There is no direct communication between manufacturer and ultimate consumer. The advertisement branch of commerce help in removing the hindrance of knowledge by spreading information about the goods and its use. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, दोनों के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर किसी न्यू प्रोडक्ट को तैयार करता है तो उसके बारे में कंज्यूमर को कोई जानकारी नहीं होती है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की इस समस्या को या प्रॉब्लम को एडवर्टीजमेंट के थ्रू दूर किया जाता है। आज गुड्स को बनाने से पहले प्रोड्यूसर एडवर्टीजमेंट के द्वारा कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर देता है कि अगले मंथ में या अगले वीक में वो कौन सी गुड्स को मार्केट में डालने जा रहा है। इस तरह कंज्यूमर को एडवांस में गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, पता चल जाता है, और वो गुड्स को आसानी से परचेज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, everyone knows that i9 is the latest microprocessor of computer because of advertisement. i9 जो लेटेस्ट प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर है, इसके बारे में लोगों को एडवांस में ही पता चल गया था एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स दैट हेल्प्स इन removing the hindrances between producer and consumers.